Heartily welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansar. I'm speaking Stella from the CA Sansar. Today we are going to talk about very important topic, which is the Income Tax Department release new draft income tax from 2026. For that, we are invited the CA Vivek Khurana sir. Thank you so much, sir, to joining us and also giving your valuable time. Before we further ado, I having a smallest request. Those are watching us to subscribe our YouTube channel and do not forget to like, share, and comment. Now, sir, I would like to invite you to share the thoughts on the today topic. Thank you very much, Stella, and the whole team CS Ansar for giving me once again opportunity on your platform to discuss on this very hot topic. Recently, Income Tax Department has issued the new income tax forms. Now it's the draft forms 2026 and totally changed. Like earlier, we were remember for the PAN number form is 49A, then for 3CD, 3CA, 3CB, and then form 16, 16A, which still we remember that. But now the number has been totally changed. So today we will discuss about the new number for major income tax draft forms, and then further, because it's very long list, further step by step we will try to discuss on each and every, not each and every, which are important for us, which are for our routine life. So let me show you through the PPT for more clarification. Yes, now I think PPT is visible. Yeah. So this is the new draft income tax form 2026, and we will also compare it with the old one. So we all know the new Income Tax Act 2025, which is replacing the old income tax, and now it's applicable from 1st April 2026. And recently, the CBDT has issued the draft income tax rules 2026 and also the draft income tax forms. It's not notified yet. It's they have only issued for the feedback and the comments from the stakeholder and the public. It's available on the income tax website. You can go there after login, after entering your mobile number and verify through the OTP. You can also give your suggestion, feedback. If there are some issue you want to give some feedback to the income tax department, then you can give it. But the last date is 22nd Feb 2026. So once it's notified, then it will be the final list. But still yet, it's the draft list. Again, I'm saying might be some number can be changed by the income tax department. So after finalizing, you can check the final list. अभी final list नहीं है, अभी draft list है ये. So one by one we will discuss. So regarding the PAN number and the TAN forms, अभी existing कौन से हैं? I'm just telling you. अभी हम, for example, if somebody wants to apply for the PAN number, तो PAN number either it's the Indian citizen or the Indian companies or the entities incorporated form in the India. कौन सा form आता था? Form 49A. बट नाउ इट्स चेंज. अभी मैं आपको एग्जिस्टिंग बताऊंगा, देन ड्राफ्ट, देन जो अगर कोई इंडिविजुअल्स नॉट बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आर द एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. तो पहले जो आपके सिटीजन्स हैं इंडिया के लिए, सेकंड नॉन सिटीजन्स के लिए, उनके लिए क्या था 49A 49AA, वो वी ऑल आर यूजिंग. देन 10 एप्लीकेशंस के लिए 49B still we are using. Now see the numbers has been changed. Now new number is form numbers 93, 94, 95, 96. So you have to remember it. तो क्लाइंट के सामने 49A 1 अप्रैल के बाद करोगे तो इनवैलिड है. So you have to remember, because from all time you are using 49A 49AA, but now 93 जो है फॉर्म, नाउ दे हैव बाइफरकेट. पहले आपका इंडिविजुअल और कंपनीज के लिए एक था, बट नाउ 93 इज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द पैन फॉर इंडिविजुअल बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया. Okay, and form 94 for Indian companies or entities incorporated in India
are unincorporated entities formed in India. So पहले एक ही फॉर्म होता था, नाउ टू फॉर्म्स आर देयर, 93 एंड 94. 93 फॉर इंडिविजुअल, 94 फॉर द कंपनीज, बाकी के लिए भी है उसमें. देन 95 application for the allotment of PAN for individual not being citizen of India. This is for 95. And then application for allotment of PAN for entities incorporated outside India. सो 93 और 94 किसके लिए हो गए आपके? 93 आपके इंडिविजुअल के लिए, 94 आपके कंपनीज या एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड इंडिया, अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी फॉर्म इन इंडिया. 95 कोई आपके नॉन सिटीजन हो गए इंडिया के, उनके लिए है, वो भी इंडिविजुअल. और 96 कंपनीज के लिए. नाउ लेट्स सी द कंपैरिजन. हाँ, इसके बाद एक जो 10 का भी था. 10 में जो पीछे हमने देखा था 49B, नाउ दे हैव चेंज 134 and form number 135. So 134 is basically for the government entities and 135 non-government entities. Now see the comparison. So पहले क्या था आपका, अपने एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन अप्लाई करना था आपका 49A है, either it's the individual or the companies or some others, it was 49A. But now it's changed to 93 form number for individual being citizen of India and 94 for the Indian companies. Indian companies and the entities incorporated in India are unincorporated entities formed in India. So उनके लिए 94 है. और इन केस जो हम पहले एग्जिस्टिंग यूज कर रहे थे 49AA फॉर द अलॉटमेंट ऑफ बैंक फॉर इंडिविजुअल नॉन बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया, जो फॉरेन्स वगैरह के लिए होते हैं, उन दोनों के लिए बाय नाउ दे हैव चेंज टू डिफरेंट. 95 में डिफरेंट, 96 में डिफरेंट. 95 में आपके इंडिविजुअल नॉट बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया और 96 आपका एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया आर द अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया. So PAN number you have to remember 93, 94, 95, 96. Then for 10 application now change to 134 form number and 135 form number. In case of government entities, now it's 134, and in case of other than government entities, 135. So abhi I am just telling you only the new numbers in detail. Like what's the new form 93, what's the new form 94, what's the new form 95, 96, we'll discuss. We'll try कि continuous daily on daily basis, we'll try my best, time मिला तो on daily basis you will get a new video. और इसमें काफी सारे चेंजेस हैं. इवन फॉर्म 3CA, 3CB, 3CD, टैक्स ऑडिट के फॉर्म भी चेंज हो गए. तो अभी मैं उसके ऊपर आता हूं, तो यू प्लीज कैरी ऑन, आप उसको मिस मत कीजिए वीडियो को. सो दिस इज रिगार्डिंग द पैन. नाउ इन सम टाइम्स जब किसी का पैन नहीं होता, देन वो जो फॉर्म 16 आपके डिक्लेरेशन देते थे, आई एम नॉट गेटिंग ए पैन एक्सेट्रा, फॉर्म में डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन अदर देन ए कंपनी और फॉर्म आर ए फॉरेन कंपनी हु डज नॉट हैव ए परमानेंट अकाउंट नंबर एंड वो एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन, जो हम फॉर्म 60 चेक करते थे. नाउ इट्स रिप्लेस्ड टू न्यू फॉर्म नंबर 97. तो जो फॉर्म 60 हम चेक कर सकते थे कि आप बैंक कहते थे कि आपके पास पैन नहीं है तो प्लीज फिल द फॉर्म नंबर 60. नाउ यू हैव टू चेक फॉर्म 97. इवन अभी आपके पास बैंक ऑडिट्स भी आएंगे तो यू हैव टू केयरफुली चेक. अभी तो खैर ओल्ड ही चेक करेंगे, इन फ्यूचर्स यू हैव टू रिमेंबर इट कि 60 नहीं है, नाउ इट्स फॉर्म नंबर 97. नाउ देन फॉरेन रेमिटेंस, जो हम पेमेंट्स करते थे रेजिडेंट्स को या कंपनीज को, वो क्या याद था आपको? 15CA, 15CB, रिमेंबर दैट कि आप कहते थे 50, अभी भी करते हैं. देन नाउ एग्जिस्टिंग क्या था? 15CA एंड 15CB. 15CA में क्या था कि आपको इंफॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ती थी बिफोर रेमिटिंग टू नॉन रेजिडेंट और द फॉरेन कंपनीज. एंड देन 15CB में क्या था? CA सर्टिफिकेट आपको कुछ स्पेसिफिक केसेस में देना पड़ता था इन केस यू आर यूजिंग 15CA, जो आप TDS वगैरह डिटेक्ट करते थे फॉर फॉरेन रेमिटेंस. नाउ इट्स चेंज्ड. Now it's changed to form 145 and 146. 15CA now 15CA replaced by form 145 and 15CB replaced by form 146. तो 145 में वही आपको information furnish करनी है before remitting payment to a non-resident or the foreign company, and for 146 certificate of accountant for payment to non-resident, non being a company or to a foreign company, वो आपका 146 में आ जाएगा. एक बार इसको अगर कंपैरिजन करेंगे, 15CA now it's
for new 145 and 15CB 146. These are draft forms which are not notified yet. It's only released by the CBDT Income Tax Department, and after notification it will be applicable from 1st April 2026 onwards. देन टीडीएस एंड टीसीएस कंप्लायंसेस. टीडीएस के लिए क्या था हमारा फॉर्म 16, 24Q, 26Q, तो दैट्स आल्सो चेंज. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टोटली नंबर चेंज मैक्सिमम. सो पहले एग्जिस्टिंग जो हम टीडीएस सर्टिफिकेट्स, जो सैलरीड के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट क्या लेते थे, फॉर्म 16. तो इफ some employees, yeah, non-chartered accountants, jo, if they are watching, they should remember कि now they should not ask on from 1st April onwards form 16. अब उसका name number change हो गया है. And 16A other than salary, then 16B, 16C, 16D, 16E, that was certificate for the like property sale, rent, contractual professional payment, virtual digital assets की जो payment TDS direct होता था. Then 27D, this is for the TCS certificate. It's also changed. So what's the new number? These are the new number: 130, 131, 132, 133. So as salaried employee, you should remember, you should not ask from 1st April onward form 16. Now you should ask form 130. एंड देन टीडीएस अदर देन सैलरी 131. और जो हमने पीछे डिस्कस कर दिया था 16B एक्सेट्रा, उसकी जगह 132. एंड टीसीएस सर्टिफिकेट के लिए 133. सो सी द कंपैरिजन. आपका सैलरी टीडीएस सर्टिफिकेट है, इंस्टेड ऑफ फॉर्म 16 नाउ इट्स फॉर्म 130. टीसीएस सर्टिफिकेट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी, इंस्टेड ऑफ 16A नाउ फॉर्म 131. देन टीडीएस सर्टिफिकेट जो इंस्टेड ऑफ अदर्स हैं, लाइक जो 16B, 16C, 16D, 16E, उसकी रिप्लेसमेंट हो गया फॉर्म 132. और जो टीसीएस सर्टिफिकेट है, इंस्टेड ऑफ फॉर्म 27D नाउ इट्स 133. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द टीसीएस फॉर्म्स. देन जो हम क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, जो टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट फाइल करते हैं, तो अर्लियर क्या था, फॉर्म 24Q तो अभी एग्जिस्टिंग है, मींस अर्लियर मींस एग्जिस्टिंग है जो भी. इट्स बेसिकली फॉर द क्वार्टरली स्टेटमेंट कि आपने टीडीएस के ऊपर सैलरी डिडक्ट करी, देन यू हैव टू सबमिट 24Q. एंड अदर देन सैलरी मींस टीडीएस पेमेंट टू सैलरी टू रेजिडेंट 26Q. देन क्वार्टरली स्टेटमेंट अगर आप नॉन रेजिडेंट को कोई पेमेंट करते हैं, देन 27Q. देन टीसीएस की जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है, इट वाज ऑन 27EQ. Now these also change new number. तो जो 24Q था उसकी जगह आ गया 138 फॉर्म. 26Q की जगह 140 कि अगर आप टीडीएस पेमेंट कर रहे हो अदर देन सैलरी टू द रेजिडेंट, देन फॉर्म 140. एंड देन इफ यू आर पेइंग क्वार्टरली स्टेटमेंट, अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज, देन फॉर्म 144. एंड देन क्वार्टरली टीडीएस जो टीसीएस की स्टेटमेंट है, इसमें 143. यू शुड रिमेंबर इट. बाद में फोन ही आएंगे, इसके लिए कौन सा फॉर्म है, इसके लिए कौन सा फॉर्म है, इसके लिए कौन सा फॉर्म है. सो यू शुड रिमेंबर इट राइट नाउ कि टीडीएस का जो 24Q था उसकी जगह आपका फॉर्म 138, 26Q की जगह 140, 27Q की जगह 144, 27EQ की जगह 143. So this is basically for the forms which you people are filing at the time of quarterly statement. जो आपकी TDS रिटर्न फाइल करते हो, TDS सैलरी की, अदर देन सैलरीज या नॉन रेजिडेंट को पेमेंट्स या TCS की. नाउ 138, 140, 144 and 143. क्लियर? दिस इज रिगार्डिंग टीडीएस. देन अनदर इंपॉर्टेंट जो हम बैंक ऑडिट में भी चेक करते हैं कि जो आपका लोअर डिडक्शन है ऑफ टीडीएस या नील डिडक्शन है आपका ऑफ टीसीएस एक्सेट्रा के है, तो उस केस में क्या कौन से फॉर्म फाइल करते थे, हमें रिमेंबर, वी स्टिल रिमेंबर 15G 15H कि आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल कर लो कि मेरा टीडीएस नहीं, तो बैंक विल डिडक्ट लेस लोअर पेमेंट ऑफ या लेस पेमेंट से. दैट्स द 15G and 15H. देन for form 14 form 13 it was for certificate under section जो lower TCS आपका है 2069 उस केस में, या 197 में आपका TDS lower TDS, that form 13 आप यूज कर रहे थे, तो इसको भी change to 121 and 128. so if you compare both, 15G and 15H replaced by form 121 and 15.3 replaced by form 128.
कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे फॉर्म्स के ऊपर. नाउ यू जस्ट रिमेंबर, आई एम कंपेयरिंग ईच जो एग्जिस्टिंग एंड द न्यू ड्राफ्ट है. माइट बी कोई नंबर चेंज हो जाए आफ्टर फाइनल नोटिफिकेशन, अदरवाइज इट विल रिमेन द सेम. ओके. देन अपील्स, जो हम अपील्स फाइल करते हैं लाइक टू सीआईटी अपील या आईटीएटी, उसमें कौन से फॉर्म यूज करते थे अर्लियर आप? फॉर्म 35 एंड फॉर्म 36. 35 is basically if you are filing appeal to the CIT appeal or the JCIT appeal against the A order, और 36 क्या था? अगर आप ITIT के पास अपील करते हो. These number also be changed. क्या नंबर आ गया? न्यू नंबर इज 99 एंड 115. अगर आप अपील फाइल कर रहे हो ज्वाइंट कमिश्नर अपील के पास या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास, देन फॉर्म 39, जो ये पीछे फॉर्म मैंने आपको बताया है 35 या 36, उसकी जगह 99 एंड 115. तो 115 आईटीएटी के पास. सो सी, दिस इज द कंपैरिजन, एग्जिस्टिंग फॉर्म एंड द न्यू फॉर्म. जो एग्जिस्टिंग फॉर्म था 35, इट्स रिप्लेस्ड बाय फॉर्म 99, एंड जो एग्जिस्टिंग फॉर्म 36 था रिप्लेस्ड बाय फॉर्म 115. Clear? So that's why I'm saying total number has been changed in this new income tax draft rules 2026, जो new income tax forms है which are applicable from 1st April 2026 onwards. Then tax audit. टैक्स ऑडिट में भी चेंजेस कर दिए, जो हमें याद है, स्टिल रिमेंबर 3CA, 3CB, 3CD टैक्स टीपी ऑडिट्स के लिए. तो स्टिल इट्स चेंज. जो पहले हम एग्जिस्टिंग है, जो अभी हम यूज कर रहे हैं करंट ईयर, तो डेफिनेटली विल यूज. जो हम टैक्स ऑडिट ऑलरेडी ऑडिट है तो 3CA प्लस 3CD. अगर ऑलरेडी ऑडिटेड नहीं है, अकाउंट्स ऑलरेडी ऑडिट नहीं हो रहे, तो 3CB और 3CD. Then Form 3CE आपके बेसिकली used in specific non-resident royalty FTS type tax audit report required, उस केस में है 3CE. Then 3CEB जो आपका है TP audit के लिए, transfer pricing audit के लिए. तो these number also been changed. ये भी चेंज हो गए. तो कौन से हो गए? एक तो आ गया आपका टैक्स ऑडिट का फॉर्म 26, 3CA, 3CB, 3CD की जगह फॉर्म 26. विल डिस्कस फॉर्म 26 के ऊपर. अभी जब फाइनल हो जाएगा, फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगी, देन विल डिस्कस इन डिटेल कि क्या क्या चेंजेस हैं 3CA, 3CB, 3CD की जगह जो फॉर्म 26 आया है. तो फॉर्म 26 is basically audit report and statement of particulars required to be furnished under section 63 of the income tax act. ये 44AB नहीं है, ये 63 है, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो आपका रिप्लेस हो गया, उसमें जो न्यू एक्ट है, न्यू सेक्शंस है. देन फॉर्म 24 ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 59 ऑफ द एक्ट. देन फॉर्म 48 जो हमने टीपी ऑडिट के लिए कहा था, उसकी जगह फॉर्म 48 आ गए. सो इफ यू कंपेयर ऑल दीज थ्री, अगर हम कंपेयर करेंगे, जो पहले आपके फॉर्म 3CA, 3CB, 3CD थे, नाउ इट्स रिप्लेस्ड बाय द फॉर्म 26. और जो ये लैंग्वेज है, दिस इज फॉर द न्यू, जहां मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, वेयर एवर आई एम कंपेयरिंग, दिस इज फॉर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट. ये जो लैंग्वेज है जो यहाँ पे आपको मेंशन कर रखी है, दिस इज फॉर द न्यू वन, बिकॉज आई एम कंपेयरिंग विद न्यू वन. पहले मैंने आपको बता दिया ये यहाँ पे ये ओल्ड वन की ओल्ड वन, दिस वन द ओल्ड वन, बट नाउ आई एम कंपेयरिंग. सो आई हैव रिटन हियर विद द न्यू इनकम टैक्स एक्ट. सो 3CA, 3CB, 3CD की जगह आपका आ गया फॉर्म 16. एंड ऑडिट रिपोर्ट, जो आपका ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 59 जो मैंने पीछे आपका डिस्कस किया था, फॉर्म 3CE, उसको रिप्लेस कर दिया फॉर्म 24 ने. एंड जो टीपी ट्रांसफर ऑडिट रिपोर्ट है, जो पहले हम फाइल करते थे, अभी भी फाइल कर रहे हैं एग्जिस्टिंग, फॉर्म 3CEB में, उसको रिप्लेस कर दिया फॉर्म 48 में. Clear? Report from an accountant to be furnished under section 172 relating to international transactions and specific domestic transaction. So these are some major which are we are using on regular basis. Otherwise उसकी पूरी complete list है. But in this video we are taking only which we are using on regular basis.
जो हम पैन पैन के जो फॉर्म्स चेंज हुए हैं, या फिर टीडीएस रिलेटेड है, या फिर टैक्स ऑडिट रिलेटेड है, वी हैव टेकन ओनली दोज फॉर्म्स. अदरवाइज it's the complete list. If anyone need it, I will upload it on the this CS Ansar YouTube channel पे link upload कर दूंगा. Otherwise you people go to the income tax website incometaxindia.gov.in. वहाँ पे आपको पूरी complete detail मिल जाएगी. So, and one disclaimer from my side, these new draft forms is as per the part list. Final notification, I told you this is only the draft list. नोटिफिकेशन विल कम, जब इसको नोटिफाई कर देंगे, सो यू पीपल कैन वेरीफाई कि कुछ चेंज है और इट्स द सेम. सो थैंक यू वेरी मच, एंड यस, डेफिनेटली आई विल ट्राई and I will ask the CS Sansar team to give me more and more time, so that we'll try to bring more clarification with this new forms. आप नंबर अभी याद कर लो, एंड कुछ उसमें क्या न्यू चेंजेस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, that will try my best. Yes, Stella. Yes, Stella, if you want to say something. Yes, sir. Thanks a lot to explain the very important topic and very well, sir. And also you're giving your valuable time to us, sir. Thank you so much. Once again, my sincere thanks to Team CS Ansar for giving me the opportunity, and definitely in detail we will discuss further. So thank you very much. Bye bye. Take care.